Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and enjoying good health. Today's lecture is about math functions. In this lecture, we will be looking for useful functions for working with numbers. So let's start by defining a variable x and let me assign some value to it. Let's say it's a float number that is 3.2. If I want to round it off, it's very simple. Just is apply round function, that is a built-in function, to the x variable, and let me print it out on the terminal. So what's its result? You will see that it will be rounded off to 3 because as it is closest. Now you can see that the answer is 3. What if I change it and say it, let's say 3.8? Let's check the answer. It's 4. So clearly it is rounding it off. Next, let's use another built-in function that is used for absolute numbers. So in other words, if we are having some negative numbers and we want them to have a positive result on the terminal, we will use absolute function. For that, we have a function of abs, and let's say I want a value of minus 3.8 turned into positive term on the terminal. Let's see it. So it's working perfectly. So technically in Python we have a handful of built-in functions for performing mathematical operations. If you want to perform complex mathematical operations or mathematical calculations, then you need to import a math module. What is a module? Let's say a module in Python is basically a separate file with some reusable codes. It has a different reusable codes in a specific module, and we use these modules to organize our codes in different files. Let's say if I want to give an example for the sake of a metaphor, like हम देखते हैं कि एक सुपरमार्केट है, ठीक है, और उस सुपरमार्केट में आपके पास लेट्स से डिफरेंट सेक्शंस हैं. कोई सेक्शन आपके पास लेट्स से कि डिटर्जेंट्स का है, कोई आपके पास फ्रूट्स का है, कोई वेजिटेबल्स का है, कोई आपके पास दूसरे जो भी आपके पास आइटम्स होते हैं ग्रोसरी के उनके हैं, ठीक है. तो उस तरीके से पाइथन के अंदर भी डिफरेंट सेक्शंस हैं मॉड्यूल्स के नाम पर, ठीक है. तो मैथ फंक्शन या मैथ मॉड्यूल, इसमें जो है ना स्पेसिफिक मैथमेटिक ऑपरेशंस को हम जब कॉल करते हैं तो वो डिफरेंट इन नंबर्स होते हैं. लेट्स से अब हम देखते हैं, उसको चेक भी करते हैं, आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा. लेट्स से इफ़ आई वांट टू इंपोर्ट अ स्पेसिफिक मॉड्यूल, उसके लिए हम import का ही कोड यूज़ करेंगे. import if I want to import a math module, ठीक है, तो I will simply write import math. These are all in small cases, ठीक है. Play this. Now you will see that run file user personal, ठीक है. तो ये इसमें अब रन हो गया है, मतलब इसने import कर दिया है. If in other words देखें लाइन 30, अब 30 जो आपके पास रिजल्ट था वो मेरे पास 3.8 आया था, जो कि मैंने एब्सोल्यूट के उससे लिया था, उसका रिजल्ट था, ठीक है. अब 31 में क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्या हुआ है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है, ठीक है. अब 32 में कोई मुझे और रिजल्ट देगा. अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि मैथ मॉड्यूल, अब पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में आप चले जाएं, ठीक है. So we have studied a term method in it. Method was specifically linked with any मतलब पहले हम स्ट्रिंग्स के साथ करेंगे, डॉट का ऑपरेटर लगाकर हम स्ट्रिंग्स के साथ चेक करते थे कि ये इसमें अपर केस है, लोअर केस है, उसको कैपिटल कैसे करना है, उसको रिप्लेस कैसे करना है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस थे, ठीक है. तो
अभी हम इसमें चेक करते हैं कि मैथ के अंदर कौन से फंक्शंस हैं। तो ये आप चेक करें मैथ डॉट, ठीक है। इफ यू प्रेस द डॉट ऑपरेटर you will be having a bunch of different mathematical functions। तो इसमें लेट से अगर मैं ट्राई करता हूँ सील, ठीक है, तो सील बिल्कुल एक अपर मतलब जिसमें आप चेक करना चाहते हैं अपर लिमिट ऑफ राउंडिंग ऑफ ऑफ ए नंबर। लेट्स से कि मैं सील किसको करना चाहता हूँ 3.8 को, तो ये मुझे क्या देगा 4 देगा। प्रिंट अगर मैं इसको प्रिंट करूँ आउटपुट टर्मिनल पर उसको मैं प्रिंट करूँ तो वी विल सी द रिजल्ट ऑन इट। check it out, it's 4। ओके सो सील, अब ये डिफरेंट, अब सील का अपोजिट इसमें है फ्लोर, ठीक है। इफ आई यूज फ्लोर देन वो बिल्कुल स्मॉलर उसको यूज करेगा। लेट्स से 3.8 है तो उसको 3 पे ले आएगा। देखें चेक करें रिजल्ट को, ये 3 पे लेके आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से भी जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं आप जब दे देते हैं इसमें, ठीक है, मैथ डॉट पे आप चले जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं डिग्रीज के, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। दूसरा फैक्टोरियल वगैरह, अब अगर आपने फैक्टोरियल लेट से फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, लेट से मैं 3 का फाइंड करता हूँ, प्रिंट लें इसका टर्मिनल पे, ठीक है। यू विल सी 6, ठीक है, तो इसके फैक्टोरियल है। बाकी अगर आपने इसके बारे में और भी पढ़ना है, चेक करना है कि मैथ के अंदर जो इसकी जो डायरेक्टरी है, इसमें बिल्ट इन फंक्शंस के अपने अपने फंक्शंस क्या हैं और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे चले जाएं, ठीक है। उधर जो है ना आप लिखें कि पाइथन 3 मैथ मॉड्यूल, ठीक है, आप उधर ये टाइप करें, ठीक है, पाइथन, क्योंकि ये 3rd वर्जन है, मैथ मॉड्यूल, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस उसमें आ जाएंगे मैथ, और उसके उनके पर्पसेस भी आ जाएंगे। तो आप उसको जस्ट अ सिंपल एक ग्लांस रीड आउट करें, ठीक है, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। इसके इम्प्लीकेशन, इसके अप्लाई करने के तरीके बहुत आसान है। जिस तरह आप देखें फैक्टोरियल का मैंने बता दिया, सील का और फ्लोर का बता दिया, तो बस अप्लाई करना इसका कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको उसका नो हाउ होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम जो है ना कंडीशनल एक्सरसाइज इसमें करेंगे कि अगर हम पाइथन पे उसको कोई कंडीशंस देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स देते हैं और उसको चेक करते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस पे या डिफरेंट सिनेरियोज पे हमें क्या आंसर दे, ठीक है। लेट्स से अगर मेरे पास एक छोटा सा मतलब सिनेरियो है कि इफ़ इट्स हॉट, तो मुझे पाइथन आंसर क्या दे, ठीक है। पाइथन कहे फिर मुझे कि इट्स अ हॉट डे एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन अगर अदरवाइज इफ़ इट इज़ कोल्ड, ठीक है, तो फिर मुझे पाइथन इस कंडीशन में मुझे क्या आंसर दे या फीडबैक दे, वो फिर ये फीडबैक दे कि इट्स अ कोल्ड डे वेयर वार्म क्लोथ्स। अब अगर ये दोनों कंडीशंस, लेट्स फर्स्ट हॉट वाला सेकंड कोल्ड वाला, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होते, तो थर्ड फिर वो मुझे अगला बताए कि अदरवाइज इट्स अ लवली डे, ठीक है। तो फिर आगे जो भी आप प्रिंट आउट मतलब उसमें लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस है। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई होता है तो मुझे ये आंसर दे टर्मिनल पर, सेकंड सेटिस्फाई होता है तो मुझे ये आंसर दे, थर्ड इन दोनों में से कोई भी नहीं होता तो मुझे ये थर्ड वाला आंसर ये मुझे दे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बूलियन फंक्शंस, ठीक है। तो बूलियन फंक्शंस ट्रू और फॉल्स सिनेरियो में यूज़ होते हैं। तो अगर मैं कोई वेरिएबल असाइन करता हूँ, ठीक है, या मैं वेरिएबल कोई बनाता हूँ विद द नेम ऑफ इज़ हॉट, लेट्स से दिस इज़ हॉट, इट्स हॉट, ठीक है। तो ये ट्रू, अगर मैं इसको अभी ट्रू कर देता हूँ, बूलियन फंक्शन है, ठीक है, it's hot या it is hot, ठीक है। So if I apply a function if condition, ठीक है, if is hot, now remember the syntax I am using, मैंने
सिंटैक्स में क्या किया कि इफ़ की अब स्टेटमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके सामने मैंने वेरिएबल लिख दिया उसका, ठीक है, जो वेरिएबल मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, उस वेरिएबल के साथ मैंने कॉलन लगा दिया, कॉलन का साइन, ठीक है। तो अगर ये अब देखें मैंने प्रेस एंटर किया है तो उसके साथ इंडेंटेशन वाज़िह तौर पर आपको स्पेस नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो जाती है। ये आपको बताता क्या है कि अगर ये लागू होता है, ये इफ़ स्टेटमेंट अगर करेक्ट होती है, ठीक है, तो फिर अगला एग्जीक्यूट क्या होना चाहिए, तो इफ़ इट इज़ हॉट, ठीक है, तो प्रिंट मुझे ये टर्मिनल पे प्रिंट क्या करके दे, जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि इट्स अ हॉट डे, ठीक है। तो ये अब एक और चीज़ है, ये स्ट्रिंग में, ठीक है, तो मैंने कोट्स डाल दिए, इट्स, let's make it capital, mm, it's a hot day, okay fine, it's a hot day। अब ये एक लाइन मैंने इसको प्रिंट इसको एग्जीक्यूशन के लिए दे दी, ठीक है, दोबारा मैंने एंटर प्रेस किया है, दोबारा वो इंडेंटेशन के साथ आ गया। इसका मतलब है कि ये अभी उसी इफ़ स्टेटमेंट के ही ब्लॉक के अंदर मौजूद है, ठीक है, हम उस ब्लॉक से नहीं निकले, जब तक ये इंडेंटेशन ख़त्म नहीं होती हम इसी ब्लॉक में रहते हैं, और ये उसी इफ़ के स्टेटमेंट के मतलब है कि ट्रू होने के सेंस में ये सारा एग्जीक्यूट, अगर मैं यहाँ पे 10-15 लाइंस लिख लूँ तो 10-15 लाइंस को ही एग्जीक्यूट करेगा, जब तक मैं इस इंडेंटेशन से नहीं निकलूँगा ये ब्लॉक ख़त्म नहीं होगा। लेट्स से मैं दूसरी लाइन प्रिंट करता हूँ, इसमें कहता हूँ कि इस ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके फाइन। if I execute let's say other उसमें मैं चला जाता हूँ, वो एक और चीज़, अब इंडेंटेशन मैंने ख़त्म कर दी, I have finished it and else, ठीक है, else otherwise, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन या सेकंड वो नहीं देता, कंडीशन नहीं देता, उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। I will directly go to the end line, that is it's a lovely day, print it's a lovely day। अच्छा, मैंने ये किया क्या है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मैंने किया है कि आपको अभी बताऊं कि अगर इट इज़ हॉट ये अगर ट्रू होता है, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करके दे, वरना फिर क्या करे, ये प्रिंट करके मुझे दे कि इट्स अ लवली डे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, आपके पास क्या आएगा, ओके, तो चूंकि हमने ये ट्रू रखा हुआ है, इसको इस बूलियन फंक्शन को, इस हॉट के फंक्शन को हमने ट्रू सेट किए हुए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और आपके पास इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके फाइन। अब मुझे चाहिए क्या कि ये स्टेटमेंट आपके पास when it's false over here then what's on the terminal, तो आपके पास टर्मिनल में फिर ये आना चाहिए कि it's a lovely day, ओके, देखिए it's a lovely day, जब वो false हो जाते हैं तो फिर आपके पास it's a lovely day। अब जो पिछला हम स्टेटमेंट को अगर आप रिकॉल करें, उसमें क्या था, दो फंक्शंस थे, एक हम स्टेटमेंट को चेक कर रहे थे कि इज़ हॉट को, दूसरा इज़ कोल्ड को। अगर इज़ हॉट में आपके पास क्या था, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इट्स अ हॉट डे। इज़ कोल्ड में आपके पास क्या था कि इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स, ठीक है। तो उसको भी हम जो है ना दोबारा एक उसके लिए भी वेरिएबल असाइन करते हैं, इज़ कोल्ड, ठीक है, इज़ कोल्ड ट्रू फॉल्स वो हम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो सेट हमने स्टार्ट में इसको ट्रू ही कर दिया, ठीक है, इस कोल्ड का वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, ये इस हॉट के अपने वो हैं, ठीक है, ओके फाइन। अब एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मल्टीपल इफ़ या स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड
इफ़ लूप्स यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसमें एल्स इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे पास दो कंडीशन थे सिर्फ, तो उसके लिए मैं सिंपल इफ़ एंड एल्स यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एंड मल्टीपल्स मतलब जित डिफरेंट आपके पास हों सिनेरियोज हों या डिफरेंट आपके पास स्टेटमेंट्स हों, ठीक है, फिर आपने उसमें इफ़ के बाद एल इफ़ यूज़ करना है, ठीक है। एल इफ़ एंड उसका जो सेंटेक्स होगा वो भी इसी तरह इफ़ की तरह ही होगा, ठीक है। एल इफ इज कोल्ड, ओके। फिर टर्मिनल पे मुझे वो क्या प्रिंट करके दे, इट्स अ कोल्ड डे and what was the next line? I guess it was wear warm clothes. Okay, fine. अब यहाँ पे इशू क्या है, अगर आप इसको रन करें, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट ऑन द टर्मिनल। अब मैंने फॉल्स कोल्ड हॉट का मैंने फॉल्स किया हुआ है तो वो इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। और ये ट्रू, इसको मैंने ट्रू किया हुआ है कोल्ड को, तो टर्मिनल में मेरे पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। क्या है कि इट्स अ कोल्ड डे वेयर वार्म क्लोथ्स। नाउ अब यहाँ पे क्या था, इज हॉट को मैंने फॉल्स रखा हुआ था एंड आई हैव सेट is called as true. What if I set both of them as false? So it is very much clear that अगर ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो आपके पास जो लास्ट स्टेटमेंट बचती है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। व्हाट इज इट? इट्स अ लवली डे। सो लेट्स चेक इट आउट ऑन द टर्मिनल। द आंसर इज इट्स अ लवली डे, ओके। सो इट्स एज इट इज, दिस इज सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये है कि लेट्स से एक बैंक है, ठीक है, देयर इज अ बैंक, ठीक है, एंड दैट बैंक इज गिविंग लोन ऑफ वर्थ, और इन अदर वर्ड्स चलें ये बैंक वाली एग्जांपल को छोड़ते हैं, मैं एक सिंपल 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 सा कहता हूँ कि एक मेंशन है, ठीक है, उसकी जो वर्थ है इट इज़ वर्थ ऑफ $1 million, ठीक है। और एक वो सेल आउट, वो जो इसके मालिक हैं वो सेल आउट इसको करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि क्रेडिट अगर किसी के पास मतलब है कि अच्छा है, ठीक है, ऑन हैंड कैश मतलब क्रेडिट वो अच्छा पे करना चाहता है, तो उसके लिए जो डाउन पेमेंट होगी वो 0.1 इफ़ क्रेडिट इज़ गुड, ठीक है। ये आपके लिए मैं लिख देता हूँ ताकि इजी रहे। इफ़ क्रेडिट इज़ गुड देन डाउन पेमेंट इज़ 10% और इन अदर वर्ड्स 0.1, ठीक है। तो डाउन पेमेंट, अब डाउन पेमेंट जाहिर सी बात है कि उसने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होके ही उसकी अपनी एक फिगर निकलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो अब कंडीशन है कि इफ़ क्रेडिट, या इफ़ मैं नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ़ एज ये आपको, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन करना ही है, ठीक है। क्रेडिट बैड लिखते हैं, ठीक है, देन डाउन पेमेंट इज 0.2, ठीक है। तो अभी आपके पास जो मतलब आंसर जो मैं चाहूँगा इस एक्सरसाइज से आपके पास आए कि वो डिपेंड करे कि आपके पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। लेट्स से कि क्रेडिट गुड है तो फिर डाउन पेमेंट जो लास्ट जो फिगर उसकी आएगी वो क्या होगी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर आपके पास क्रेडिट बैड है तो डाउन पेमेंट का जो एंड में जो फिगर आएगा, ठीक है, जितने भी डॉलर्स हैं वो उसका फिगर क्या होगा। एक दूसरी चीज़ मैं जो एक्सपेक्ट करना चाहूँगा इसमें आप लोगों से कि जो आप स्टेटमेंट बनाएं या
छोटी सी एक्सरसाइज है उसको जो आप सॉल्व करें, तो आप इसमें जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वो ज़रा यूज़ करें इसको, तो देखें कि वो इसमें कैसे यूज़ होगा. Another connected conditional sentences which you pass through in your exercises and daily lives is that some conditional statements are connected with another, like जिस तरह हम वो गेट्स के कंसेप्ट था हमारे पास, शायद अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट क्लास में एक्सेल पे भी इसको ट्राई किया था कि अगर आपके पास और एंड के जहाँ पे गेट्स हो, ठीक है, और में ये था कि आप अगर आपके पास एक भी चीज़ क्लिक कर जाती है और उसका रिज़ल्ट मतलब येस आता है, ठीक है, तो अगर दूसरे में आपके पास नो का आंसर भी हो तो आप क्लिक कर जाते हैं, ठीक है, येस, ओके, इट्स फाइन. लेकिन एंड में आपके पास दोनों का ट्रू होना लाजमी है टू गेट द रिजल्टेंट ट्रू, ठीक है. इसमें अगर एक भी फॉल्स होता है तो आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट फॉल्स हो जाता है, ठीक है. तो उसको भी हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं. आपके आसानी के लिए, मतलब टाइम के लिए मैंने थोड़ा सा पहले से लिख दिया है कि इफ़ एप्लीकेंट, ये मेरे पास सिनेरियो है कि इफ़ एप्लीकेंट हैज़ हाई इनकम एंड गुड क्रेडिट, ठीक है, अगर ये दोनों उसके पास हैं, मतलब उसकी इनकम भी ज़्यादा है, उसके पास क्रेडिट भी अच्छा है, ठीक है, तो वो बंदा एलिजिबल है फॉर लोन, ठीक है. तो इसमें अगर एक भी सिनेरियो वो कंप्लीट मतलब सेटिस्फाई नहीं होता तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है. उसके लिए मैंने छोटा सा कोड लिख दिया कि हैज़ हाई इनकम, ठीक है, इफ़ आई सेट दैट एज बुलियन, मैं उसको ट्रू कर देता हूँ. अनदर हैज़ गुड क्रेडिट, उसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है. इसको मैं रन करता हूँ इफ़ स्टेटमेंट लगा कर, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ. अब ये देखें मैंने इफ़ लगाया, मैंने एल्स की स्टेटमेंट अभी इसको नहीं दी, ठीक है. तो ये मुझे टर्मिनल पे क्या देगा, इसको ज़रा चेक करें, ठीक है. लास्ट में क्या है, एलिजिबल फॉर लोन 48, एलिजिबल फॉर लोन, ओके. क्यों एलिजिबल है, क्योंकि दोनों कंडीशंस इसमें ट्रू हैं. अगर मैं इसमें कोई भी फॉल्स कर देता हूँ तो फिर आप क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या आएगा. यहाँ पे टर्मिनल पे आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा, उसकी रीज़न है, ठीक है. आप ज़रा इस पर सोचें क्यों नहीं है. यहाँ पे देखिए रन फाइल हुआ है, रन तो हुआ है, लेकिन उसने आंसर कोई नहीं दिया. उसकी वजह ये, उम्मीद है आपने आंसर क्लिक की, मतलब आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा, लेकिन अगर अभी तक क्लिक नहीं हुआ तो उसकी वजह ये है कि ये मैंने फॉल्स किया है और मैंने उसके मुताबिक इसको एल्स की स्टेटमेंट नहीं दी. इफ़ की तो मैं दे चुका हूँ, ठीक है, एल्स का मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ. तो मैं एल्स में अगर मैं लिखूँ कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर मुझे टर्मिनल पे क्या दे, वो प्रिंट नॉट एलिजिबल, एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है, ये मुझे प्रिंट करके दे. लेट्स रन इट, ठीक है, ये देखें आप, नॉट एलिजिबल फॉर लोन. तो इसमें कोई भी कंडीशन, अब अगर इसको मैं ट्रू करूँ दोबारा तो आपके पास क्या आएगा, एलिजिबल फॉर लोन आएगा. ये वाला टर्म या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है. इसको ज़रा चेक करें, देखें एलिजिबल फॉर लोन. अगर दोनों फॉल्स हों तो उसमें भी, उस सेंस में भी फिर जो है ना आपके पास एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो रन होगा, ठीक है. मतलब इस तरह ये एंड है, ठीक है, इस तरह और भी है. तो और में क्या है, कोई भी एक अगर ट्रू हो, ठीक है, तो आंसर वो आपको दे देगा, प्रिंट आउट करके टर्मिनल पे देगा, ठीक है. दोनों फॉल्स हों तब वो इस एल्स में जाएगा, ठीक है. क्लियर.